Hello friends. In the previous part we have studied the flux, electric flux, and we are about to understand the basic idea of flux. So when you think what is flux mostly, then the flux it is the electric field line passing through any area. Here we are given area and how many field lines are passing through that area, it is just called flux. I told you that the another word for the flux is stream, okay, just like water stream. So in our case, how many field lines are passing through area, that flux can be calculated using EA cos theta in most cases. EA cos theta, okay, and the cos theta factor makes it the scalar quantity flux. Another thing that if we are given a random area that can be calculated easily, and at different point electric field is different, just like this, different value of electric field. In such case, we can hypothetically calculate flux using equation integration E dot dA. E dot dA. Okay, so this is the integration to be carried out over the surface. Okay, so the integration is carried out over the surface. We can divide whole area into small parts, and then we can find the electric field. But now our next question is, what if our charge, say our positive charge, is enclosed by closed surface? Here is the surface that is the closed. Suppose this is a sphere, okay, and in the sphere we have charge that is placed somewhere inside the sphere. So now we are discussing the flux in certain case of what if the charge is enclosed by the surface, and that idea leads us to Gauss law. Gauss was great mathematician. Okay, I would like to show his image. He was one of the favorite. He has derived two formula in our physics for the electric field and Gauss. Here is so this is Carl Friedrich Gauss. He was German mathematician and has contributed many things in the field of maths and physics. Okay, he spent his entire life finding the nature phenomena using mathematical equation, and so he is one of my favorite, Carl Friedrich Gauss. He gave us idea here, the Gauss law. You will find some fascinating things here about the learning of electric flux. So this is the IMP question, and we will cover this question only in this video, because this is to note down step by step. I will show how to write the theory if it is asked in 2 marks or 3 marks. So suppose our charge, it is fundamental law just like other laws of physics. Suppose here is our positive charge, the positive charge that is enclosed by a spherical closed surface. Suppose this is the spherical closed surface, I mean a sphere. सो ये जो स्फीयर है उसके सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं क्यू. ओके, सो ये बन गया पॉजिटिव क्यू. तो फ्रेंड्स, अभी ये जो चार्ज है उसके अंदर से फील्ड लाइन निकलेगी. आपको पता है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव चार्ज का है. तो अभी हमें यहाँ पर कितना फ्लक्स एसोसिएट है
हमारे स्फीयर के साथ वो फाइंड करना है। ये जो स्फीयर है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है वो फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल लाइंस हर जगह से निकलती है। आई वुड लाइक टू शो यू another image of such thing that will give you the idea। चलो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, मतलब कि एक क्यूब है, उसके सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो उसके अंदर से ये फिल लाइन जो निकल रही है, ऐसे आपको इमेजाइन करना है, एग्जैक्टली इस तरह से इमेजाइन करना है कि यहाँ पर हमारी फिल लाइंस निकल रही है। ओके, अब हमें इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारा इक्वेशन है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट, अगर हमारा एरिया कोई भी रैंडम हो, कोई भी एरिया हो, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं ई डॉट डी ए वाला। ओके, चलो, तो ये इक्वेशन हमें यूज करना है और सरफेस पर हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए कि एक स्मॉल एरिया चाहिए कि जो हमारे स्फीयर पर हो। अब ये जो स्फीयर है उसको हम स्मॉल एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। समझो कि यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया, इतना एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया, उसका जो एरिया है उसकी वैल्यू डी ए जितनी है। डी ए मतलब कि स्मॉल एरिया, ये आप समझ सकते हैं। ओके, वेरी स्मॉल। थियोरिटिकली हाइपोथेटिकली हम देखने जाए तो जस्ट मोर देन जीरो, मतलब कि जीरो के नज़दीक की वैल्यू उसकी, इतना एकदम स्मॉल एरिया है। और जो एरिया है उसका वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये एरिया का वेक्टर है। ओके, तो ये एरिया का वेक्टर बन गया, हमने जो कंसीडर किया वो एरिया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। चलो, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने जो पॉइंट कंसीडर किया ये वाला, वहाँ पर एरिया डी जितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जितना है। ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस हम यूजुअली जो लेते हैं आर ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब कि हमारी रेडियस। अब सब वैल्यू यहाँ पर इनपुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस। ओके, तो ये हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैल्यू ई डी ए डॉट मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें रिमूव करना है, डॉट हमें रिमूव करना है, तो लिख ई डी ए कॉस थीटा। आपको ये पता है, अगर वैल्यू में लिखना है तो कॉस थीटा लिख सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगा। चलो, तो अभी यहाँ पर हम इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ये जो हमने पॉइंट कंसीडर किया जो हमारी सरफेस पर है, ये जो स्फीयर है उसकी सरफेस पर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल है के। ओके, हमारा चार्ज कितना है क्यू, हमारा डिस्टेंस कितना है पॉइंट तक का, तो वो आर, तो मतलब आर स्क्वायर, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो डी ए, जो हमारा एरिया है वो डी ए कॉस, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, एरिया का वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो मतलब कॉस जीरो, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, वो सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो। कॉस जीरो बन गया 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टर्म रहेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए, और ये बन गया 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। चलो, तो ये जो स्टेप है उसको हम स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं के जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ओके, क्यू जो है वो चार्ज भी हमारा कांस्टेंट है, वो सेंटर पर हमने प्लेस किया है ऑलरेडी, बाय आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन डी ए रहेगा, इतना टर्म रहेगा। ओके, ये बाकी की जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है। चलो, तो अभी के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए, मतलब ये जो हमारा हमने जो स्फीयर कंसीडर किया था उस पर डी ए जितना स्मॉल सरफेस हमने अज्यूम किया था। अगर ऐसे स्मॉल सरफेस सभी एज्यूम करके उसका एडिशन कर दे
तो पूरा जो स्फीयर है उसका एरिया मिल जाएगा। तो मतलब ये जो इंटीग्रेशन डी ए वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन डी ए मतलब कि डी ए जितने स्मॉल भी एरिया है, जितने भी एरिया, उसका सब एडिशन मतलब कि पूरा जो स्फीयर है उसका एरिया। तो वो स्फीयर का एरिया तो पता है 4πr²। चलो यहाँ पर एक चीज़ हम जो प्रीवियस इनिशियल वीडियो में की थी, मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ में बताया था कि के की जगह हम वैल्यू लेंगे, के जो है उसकी जगह हम वैल्यू लेंगे के इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, ये वैल्यू लेंगे। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारी परमिटिविटी है, वैक्यूम की परमिटिविटी। ये बात हमने कूलम्ब्स लॉ में कही थी। और ऐसा करने में हमारे इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। मैं अभी आपको वो बात बता देता हूँ, हमने कहाँ पर देखी थी। तो जो कूलम्ब्स लॉ था उसमें यहाँ पर हमने वो डिस्कशन की थी, फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्मूला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के इज एक्सप्रेस्ड एज 1/4πε। अगर के की जगह 1/4πε लेते हैं तो क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा। के की जगह हम लिखते हैं 1/4πε0 Q/r², यहाँ पर ब्रैकेट में है 4πr²। तो ये 4π जो है वो निकल जाएंगे, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन। ओके, r² भी निकल जाएगा, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन, एंड हैंस द रिमेनिंग पोर्शन इज Q/ε0। तो ये जो हमने फ्लक्स फाइंड किया वो हमारा हो गया Q/ε0, एंड ये बन गया गाउस लॉ। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। ये जो फ्लक्स हमने यहाँ पर फाइंड किया वहाँ पर Q/ε0 है, कोई भी अलग से क्वांटिटी नहीं है, कोई भी अलग से पैरामीटर नहीं। मतलब कि हमारा जो भी चार्ज हो, मतलब कि हमारा चार्ज समझो कि कैपिटल Q है। ओके, और वो कोई भी एरिया में एंक्लोज हुआ है। हमने यहाँ पर तो स्फीयर लिया था, पर समझो कि कोई भी एरिया में एंक्लोज हुआ है। तो ये जो एरिया कौन सा है, मतलब कि कौन सा सरफेस है, वो सरफेस का यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ Q की वैल्यू रखनी है और आपको सीधा फ्लक्स मिल जाएगा। समझो कि यहाँ पर वही बात मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमारा जो चार्ज Q है और वो एक क्यूब में एंक्लोज हुआ है, तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स सिंपल Q/ε0। मतलब कि यहाँ पर जो सरफेस है उसका कोई पैरामीटर, कोई क्वांटिटी नहीं है। मतलब किसी भी सरफेस के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि समझो यहाँ पर हमारा जो सरफेस है, यहाँ पर रैंडम सरफेस है कोई भी, और उसके अंदर यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q1। ओके, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है दूसरा पॉजिटिव Q2। ओके, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है नेगेटिव -Q3। और ये सरफेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा वो फाइंड करना है। तो अभी ये इक्वेशन के साथ हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, हमें सिर्फ ऊपर नॉमिनेटर में चार्ज लिखना है। तो हमारा चार्ज कितना है, वो हमारे सरफेस में किसी भी जगह हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में, क्योंकि वो भी यहाँ पर कुछ पैरामीटर नहीं है, किसी भी जगह हो सकता है हमारा चार्ज, सिर्फ सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो मतलब चार्ज हमारा एक है Q1, दूसरा है +Q2 और तीसरा है -Q3। ओके, बाय ये जो परमिटिविटी है वो है ε0। हो गया हमारा फ्लक्स का इक्वेशन। इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q, मतलब कि जो भी हमारा अंदर चार्ज एंक्लोज होता है उसका एडिशन बाय ε0। तो ये बन गया फ्लक्स। अब आप सोचिए कि फ्लक्स फाइंड करना कितना आसान हो गया। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो हमारा जो क्लोज सरफेस है, हमारे जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है वो लिखना है बाय ε0। तो ये बन गई हमारी थियरी। तो अब ये जो हमारा गाउस का लॉ है
उसको यूज़ करके हम काफ़ी सारी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो आपको लिखना क्या है, तो फर्स्ट फिगर ये जो है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हमारा। तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है एग्जैक्टली इस तरह से। सेंटर में क्यू चार्ज, हमारा जो स्फीयर है उसका रेडियस आर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो पॉइंट है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और वहाँ पर जो हमने एरिया कंसीडर किया वो डी है। एग्जैक्टली इस तरह से फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, चलो, तो अब यहाँ पर लिखना है हमें, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ पर जो हमारा स्फीयर है उसके सेंटर पर हमारा चार्ज रखा गया है। नाउ वी विल डिटरमाइन टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ द स्फीयर यूजिंग इक्वेशन, जस्ट राइट द यूजिंग इक्वेशन अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ओके, सरफेस पर हम जो लिखने वाले हैं वो ई डॉट डी ए की वैल्यू जो वेक्टर फॉर्म है उसकी वैल्यू लिखने जाए तो ई डी ए कॉस थीटा। ओके, अब क्या लिखना है हमें, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर एट इक्वी डिस्टेंस फॉर द सेंटर। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हो गए, सरफेस पर जो भी पॉइंट हो गए वो यहाँ पर सेंटर से एक सरखी दूरी पर है, मतलब उसका डिस्टेंस सेम है, सो दे आर कॉल्ड इक्वी डिस्टेंस। हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। तो यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, सेम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ओके, और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, बाहर निकलती डायरेक्शन में। तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि ई डी ए वो सेम डायरेक्शन में है। तो ई इंटीग्रेशन डी ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मैंने यहाँ पर लिखा था के क्यू बाय, लिखा था के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट डी ए। के क्यू को बाहर लिख दिए, डी ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मिल जाएगा। चलो, तो हमारा फ्लक्स मिल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये बात एकदम इंपॉर्टेंट, हियर द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन हमें मिला उसमें रेडियस नहीं है। ओके, हैंस इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, मतलब कि कोई भी सरफेस ले ले, उसके अंदर कहाँ भी किसी भी पॉइंट पर हम चार्ज ले ले, किसी भी पॉइंट पर चार्ज ले ले, इक्वेशन वैलिड है। तो गाउस लॉ को हम लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस। यहाँ पर ये जरा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, विथ एनी क्लोज सरफेस, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो सरफेस होनी चाहिए ना वो क्लोज ही होनी चाहिए। ये जो हमने आगे बात की थी ना, मतलब कि यहाँ पर कोई एरिया ले ले और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्लोज सरफेस नहीं है, ये वाली क्लोज सरफेस है जिसके अंदर हमारा चार्ज है। इसलिए इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट कितना है अंदर टोटल वो सिग्मा क्यू, बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी का रेशियो। ओके, तो इतनी बात सिर्फ हमें लिखनी है। तो ये हमारी आईएमपी थियरी है, आपको ये नोटबुक में राइट डाउन करनी है। और इसका जो मोस्टली इसका जो जेडबल नीट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए हम काफ़ी सारे जेडबल नीट के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ एक दो बातें बता देता हूँ। सपोज़ कि आपको, चलो कि आपको यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल शेप दिया गया है, एक सिलेंडर है। ओके, ये भी एक क्लोज सरफेस ही बनता है हमारे लिए। ओके, चलो आपको दिया गया है कि उसकी कोई एक सरफेस पर चार्ज दिया गया है, यहाँ पर जो सर्कुलर सरफेस है वहाँ पर क्यों जितना चार्ज दिया गया है, तो सिलेंडर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, और से कि यहाँ पर हमारा कोई क्यूब है, उसके यहाँ पर कॉर्नर पर यहाँ पर क्यू चार्ज दिया गया है, तो हमारा सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है एंड देन वी एनलॉन्ग द लेंथ ऑफ वीडियो। सो यहाँ पर आईएमपी थियरी आप प्रिपेयर करेंगे। दैट्स फॉर नाउ।